Now, today's GATE lecture is Dr. Rupali Kelkar Madam. He is working with SBJITMR Group of SBJITMR Group, College of Engineering and Technology, Nagpur. Also, the madam has vast experience in teaching. At least 21 years, madam is in this field. Now, the today's GATE lecture topic is that module 7 is complex variable. So, I request to Rupali madam to please deliver the lecture for our students. Hello, madam. Hello. Hello. Can I start? Hello, madam. Start करूँ ना? Yes, ma'am. Yes. Start correct. Yes, ma'am. Okay. Hello, students. Good afternoon. Today's topic is Cauchy's theorem, Cauchy's formula, and Taylor's and Lorentz expansion. टॉपिक से पहले आप लोगों का एक लेक्चर हो चुका है फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पे. जस्ट उसको हम रिवाइज करेंगे और फिर हम टॉपिक पे जाएंगे. ठीक है मैडम, प्लीज चेंज द स्लाइड. हेलो मैडम. So what is complex variable? X plus iy is a complex variable and generally it is denoted by z. That is x plus iy is equal to z, where x and y both are real numbers and I is equal to under root of -1. Now complex function f of z is equal to u plus iv is a function of complex variable z and it is denoted by w, where u is a function of x and y. V is also a function of x and y, right? U and V are real functions of two variable x and y, and u plus iv is a complex function, where u is real part of the function and w is v is imaginary part of it. Clear? Now continuous function. So f of z is said to be continuous at point z is equal to z0 if f of z0 exists. That is limit z tends to z0, f of z is equal to f of z0. Right? The limiting value of f of z as z tends to z0 coincident with the value. Now function f of z is not continuous at any point is called as discontinuous. Now, what is differentiable function? So, a function f of z is said to be differentiable at z is equal to z0 if the limit exists. Which limit? F dash z0. It is equal to limit z tends to z0 f of z minus f of z0 upon z minus z0. If this limit is exist or f dash z0 is exist, means first order derivative at z is equal to z0 is exist, then we say that function is differentiable at that particular point. Right? Next slide, please. Next. Okay. Now analytical function. What is analytic function? A function f of z is said to be analytic at z is equal to z0 if f of z is differentiable at z is equal to z0 and every point of a neighborhood of z0. ठीक है? सबसे पहले आप ध्यान दो, एनालिटिक मतलब क्या होता है? फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. डिफरेंशिएबल मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए और डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने के लिए वो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए. राइट? So a function is said to be analytic at any point if that function is differentiable, or we can say that derivative of this function at that particular point is exist. Clear? Now f of z is equal to u plus iv is differentiable at z, then at the point the first order partial derivative of u and v satisfy Cauchy's and Riemann condition.
This is necessary and sufficient both. If function is analytic, then Cauchy's-Riemann condition satisfied, and if CR condition satisfied, then function f of z is equal to u plus iv is analytic function. So CR conditions are del u by del x is equal to del v by del y, and del u by del y is equal to minus of del v by del x, where u and v are functions of x and y, right? Now Cauchy's-Riemann conditions in polar form. So let w is equal to f of z is analytic function. We have z is equal to x plus iy. So in polar form, x is equal to r cos theta, y is equal to r sin theta. So z is equal to r cos theta plus I r sin theta, right? Or it is equal to r e to the power I. So u plus iv in polar form, it is f of r e to the power I theta, where u and v both are the functions of r and theta. Clear? Next slide, please. So differentiate one with respect to r, we get del u by del r plus I del v by del r is equal to f dash and then e to the power I theta. Similarly, differentiate one with respect to theta. So del u by del theta plus I del v by del theta is equal to f dash and r I e to the power I theta. Right? Dividing both sides of equation number 3 by IR, we get equation number 4. And from 2 and 4, we get Cauchy's-Riemann conditions in polar form. And these conditions are del u by del r is equal to 1 upon r del v by del theta. And del u by del theta is equal to minus of r del v by del r. So Cauchy's-Riemann condition in Cartesian form and in polar form. Cauchy's-Riemann conditions are necessary and sufficient condition to f of z is an analytic function. Right? Next slide, please. Now harmonic function. So any function f having continuous partial derivatives and satisfy Laplace equation, that is second order derivative of f with respect to x plus second order derivative of f with respect to y is equal to 0, is called harmonic function. So harmonic function के लिए function क्या होना चाहिए? Defined होना चाहिए, continuous होना चाहिए, differentiable होना चाहिए, और उसमें क्या satisfy करना चाहिए? Laplace equation satisfy. Clear? If f of z is equal to u plus iv is analytic function, then u and v are harmonic function. Compulsorily, if f of z जो कि u plus iv के फॉर्म में रहता है, वो अगर एनालिटिक है, मतलब if CR conditions are satisfied, then u and v are harmonic functions, right? So if f of z is equal to u plus iv is an analytic function, then CR condition satisfies. So del u by del x is equal to del v by del y, and del u by del y is equal to minus of del v by del x. So differentiate one with respect to x and differentiate one with respect to y, we get equation number 2 and 3, right? And from 2 and 3, madam, next slide, please. We get second order derivative of u with respect to x, second order derivative of u with respect to y is equal to 0, and same equation for y. That means f of z is equal to u plus iv is analytic. So individual u and v both are harmonic, right? ये condition है. Now harmonic function in polar form, when u and v are functions of r and theta, तब Laplace equation क्या होगा? So if f of z is equal to u plus iv, where u and v are functions of r and theta, then Laplace equations are second order derivative of u with respect to r plus 1 upon r del u by del r plus 1 upon r square del square u by del theta square is equal to 0. And del square v by del r square plus 1 upon r del v by del r plus 1 upon r square, second order derivative of v with respect to theta is equal to 0, right?
So harmonic function, clear? Next slide please. Hence if f of z is analytic, u and v are harmonic. ठीक है, f of z अगर analytic है तो u and v क्या होते हैं? Harmonic. In that case u and v are called conjugate harmonic of each other. u and v क्या है? Conjugate harmonic of each other. Clear? कब conjugate harmonic रहेंगे? When f of z is analytic and u and v are harmonic. So find conjugate harmonic function when real part u is given. f of z is equal to u plus iv का फॉर्म रहेगा. तो conjugate harmonic मतलब उसका एक पार्ट अगर हमको दिया है तो हम with the help of that given part we can derive second one. So conjugate harmonic when its real part is given. So when u is given, what is its conjugate harmonic? Imaginary part of f of z. So f of z is equal to integration minus del u by del y dx plus integration del u by del x dy plus c. And find conjugate harmonic of the analytic function f of z when its imaginary part is given. So u is equal to integration del v by del y dx plus integration minus del v by del x dy plus c, right? And in polar form means when u and v are functions of r and theta. So conjugate harmonic when real part u is given, v is equal to integration of minus 1 upon r del u by del theta dr plus integration r into del u by del r d theta plus c. Then find conjugate harmonic when imaginary part is given. So u is equal to integration 1 upon r del v by del theta dr plus integration minus of r del v by del r d theta plus c. यहां तक आप लोग पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं. ठीक है मैडम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. One more method is there, Milne-Thomson method. Milne-Thomson method is used to construct an analytic function when its real or imaginary part, imaginary components are given. So Milne-Thomson method इसलिए भी यूजफुल है क्योंकि यहाँ हमको conjugate function न निकालते हुए हम डायरेक्ट f of z कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ठीक है. So to find analytic function f of z when its real part is given, so f of z is equal to integration of phi 1 at point z0 dz minus of I integration phi 2 at point z0 dz plus some constant c, where phi 1 is equal to del u by del x and phi 2 is equal to del u by del y. Similarly, f of z means analytic function when its imaginary part is given. So integration of psi 1 at point z0 dz minus of I integration of psi 2 at point z comma 0 dz plus c, where psi 1 is equal to del v by del y and psi 2 is equal to del v by del x. Clear? तो आज के लिए ये प्री रिक्विजिट था, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो गया पिछले लेक्चर में. अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. ठीक है मैडम, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. तो सबसे पहले हम समझेंगे सिंपली कनेक्टेड रीजन. व्हाट इज सिंपली कनेक्टेड रीजन? Cauchy's integral theorem is applicable only on simply connected region, right? So what is simply connected region? A curve having no self intersection is called simply closed curve. आप लोगों को याद होगा बचपन में हम सबने खेल खेला होगा, एक ऐसा शेप बनाओ जिसमें हमको पेन उठाना नहीं पड़ता, हम अपना गोल गोल आप कैसे भी बना सकते हो. मैथमेटिकल इसमें देखेंगे तो वो ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, एलिप्स कुछ भी रहेगा, इरेगुलर शेप भी चलता है, बट ऐसा शेप क्लोज जिस पॉइंट से स्टार्ट करना है घुमा फिरा के हम उसी पॉइंट पे आते हैं, दैट इज नोन एज सिंपल क्लोज्ड कर्व. क्लियर? A curve having no self intersection, एक ऐसा कर्व जो खुद को ही कहीं भी कट नहीं करता. आप देखो पहला डायग्राम है सर्कल, वेरी सिंपल, इट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व.
दूसरा बना हुआ है इलिप्स, दैट इज सिंपल क्लोज्ड कर्व। थर्ड वाला लाइक इन्फिनिटी, ये जो बना हुआ है, आप एरो को देखते हुए आप जाओ, एरो मतलब टुवर्ड्स एरो अगर आप चलना स्टार्ट करते हो तो कर्व इंटरसेक्ट इटसेल्फ, so this is not a simple closed curve. Third one is not a simple closed. Clear? Second point is a closed region R. So what is closed region? पहले हमने देखा closed curve क्या है, ऐसा कर्व जो खुद को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करता, that is closed curve. And closed region मतलब a region, an area enclosed by simple closed curve, right? So simple connected curve, पहला डायग्राम देखो, simple connected curve, closed curve दिख रहा है, and region or area bounded by this simple closed curve is known as closed region, right? और अगर कोई ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। जैसे सेकंड देखो, सेकंड में आपको एक डिस्क दिखाई दे रही, दिस डिस्क इज, ये जो बीच वाला पार्ट है ना ऐश कलर का, दैट इज मल्टीपल कनेक्टेड रीजन, बिकॉज दिस रीजन, अगर हमको ये रीजन बताना है तो हमको दो इलिप्स बनाने पड़ेंगे, है ना, एक आउटर वाला और एक इनर वाला। तो दिस रीजन बाउंडेड बाय टू डिफरेंट कर्व, सो इट इज मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। क्लियर? सिंपल कनेक्टेड रीजन मतलब एरिया कवर्ड बाय क्लोज्ड कर्व, मल्टीपल कनेक्टेड रीजन area bounded by more than one closed curve, right? Next slide please. Madam please next slide. So अगर कोई मल्टीपल कनेक्टेड कर्व है, जैसा आपको पहला डायग्राम दिख रहा है, आप देखो, सो मल्टीपल कनेक्टेड कर्व को अगर हमको सिंपल क्लोज्ड कर्व में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक जगह कट लगाएंगे और कट लगा के उस पार्ट को ज्वाइन कर देंगे, जैसा आपको सेकेंड इसमें दिख रहा है, राइट? एक जगह से कनेक्टेड किया। सेकेंड डायग्राम देखो, दिस इज ऑल्सो मल्टीपल कनेक्टेड कर्व, रीजन बाउंडेड बाय थ्री क्लोज्ड कर्व। सेकेंड वाला पार्ट देखो, एक आउटर क्लोज्ड कर्व है, उसके अंदर दो छोटे छोटे हैं, ठीक है? तो इसको भी हम सिंपल क्लोज्ड कर्व में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हमको दो तरफ कट करना पड़ेगा, तो दो जगह से हमने इसको कट किया और इसको हमने बना दिया simple connected curve. Any doubt? And Cauchy's integral theorem and Cauchy's formula is applicable only on simple closed curve. तो इस टाइप के भी जो कर्व है, that is known as simple closed, right? Next slide please. So Cauchy's integral theorem, ये है Cauchy's integral theorem, statement पहले, if f of z is analytic function inside and on a closed curve C, then integration along closed curve C f of z dz is equal to 0. ठीक है? अब ये जो स्टेटमेंट है, इसका आप एक एक वर्ड का मतलब समझो। f of z is analytic function, that means Cauchy's रीमान कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। एनालिटिक है मीन्स डिफरेंशिएबल है, मतलब डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, और डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। कहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व C. सो C इज अ क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व अभी क्लियर हुआ होगा आप लोगों को क्या है क्लोज्ड कर्व। तो क्लोज्ड कर्व जितना एरिया, जितना रीजन कवर कर रहा है, वो सारा रीजन, एंड ऑब्वियसली बाउंड्री ऑल्सो, बाउंड्री, उस पूरे पे जितने भी पॉइंट आएंगे उस सारे पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, डिफरेंशिएट होना चाहिए, और एनालिटिक भी होना चाहिए, मतलब CR कंडीशन उसने सेटिस्फाई करना चाहिए। तो उस पर्टिकुलर फंक्शन का अलोंग द इंटीग्रेशन अलोंग द क्लोज्ड कर्व C कितना होगा, हमेशा 0। ये इसका मतलब है, इफ f of z is analytic function inside and on a closed curve C, then integration along C f of z dz is equal to 0, right? इसका प्रूफ है, ये आप लोगों के लिए नहीं है, बस आप लोग ध्यान में रखना कि इट इज इक्वल टू 0, right? Now Cauchy's integral formula, if f of z is analytic,
within and on a closed curve C. ठीक है मैडम, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. Cauchy's integral formula: if f of z is analytic within and on a closed curve C, ठीक, and A is a point within C, then A कौन सा पॉइंट है? C के अंदर ही होना चाहिए, within and on a closed curve C. Then integration along closed curve C, f of z upon z minus a dz is equal to 2 pi I into f of A. 2 pi I into f of A, right? So what is f of z? Analytic function. Analytic function है और f of z upon z minus a. A point कहाँ पे आना चाहिए? Within and on a closed curve C. Then integration f of z upon z minus a dz is equal to 2 pi I f of A. F of A means value of f of z at z is equal to A. And extension of Cauchy's integral formula: if f of z is analytic within and on a closed curve C and A is the point within C, then integration along closed curve C, f of z upon z minus a to the power n plus 1 dz is equal to 2 pi I upon factorial n, nth order derivative of f of z with respect to z at z is equal to a. This is extension of Cauchy's formula. So first जो formula है that is for simple closed curve, और जो second formula है that is for multiple curve, जिसको हमने किस में कन्वर्ट किया है? क्लोज्ड कर्व में कन्वर्ट किया. तो ये दोनों रिजल्ट एज ए फॉर्मूला आपको याद रखना. ठीक है मैडम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. Now zeros of function. What is zeros? A zero of an analytic function is that value of z for which f of z is equal to 0. जीरो का मतलब ऐसे पॉइंट जहां पे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है. द होल फंक्शन इज इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट इज सिंगुलर पॉइंट और पोल ऑफ द फंक्शन. अ सिंगुलर पॉइंट और पोल of a function of an analytic function is that value of z at which function is not analytic or function is not defined. ठीक है, तो सिंगुलर पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं. पोल is also called singularity. Singularity, singular point or pole, that means function is not defined. And if function is in fraction form, that means denominator tend to 0. Clear? ठीक है, सिंगुलर पॉइंट मतलब जहां पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, और जीरो का मतलब जीरोस ऑफ द फंक्शन मतलब जहां पे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाती है. ठीक, if any function has only one singular point, if any function has only one singular point, then this pole is known as isolated singular point, or we can say that this singularity is isolated. ठीक, तो कैसे रहेगा? सपोज f of z is equal to 1 upon z minus 4. This fraction is defined for all value of z except at z is equal to 4. ठीक है ना? 1 upon z minus 4, ये फ्रैक्शन कब डिफाइंड नहीं रहेगा? जब z की वैल्यू 4 हो जाएगी, मतलब डिनोमिनेटर 0 होगा. डिनोमिनेटर 0 मतलब z की वैल्यू 4. So 1 upon 0 is infinite. So 1 upon z minus 4 is not defined at z is equal to 4. Therefore z is equal to 4 is a singularity of this function. Clear? और z is equal to 4 के अलावा एक भी सिंगुलर पॉइंट दूसरा नहीं है. That's why this singular point is known as isolated singular point. Clear? Second type of function देखो, if f of z is equal to 1 upon z minus 3 z minus 5, if the function have two or more different singular points,
अब फंक्शन देखो आप क्या है, 1/z-3 z-5। ये फ्रैक्शन कब डिफाइंड नहीं रहेगा, जब डिनोमिनेटर 0 होगा। तो डिनोमिनेटर 0 होगा मतलब आइदर z इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू 5। ये दो पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, अदरवाइज इट इज डिफाइंड एवरीवेयर एक्सेप्ट z इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 5। तो इस फंक्शन की कितनी सिंगुलैरिटीज हैं, दो सिंगुलैरिटीज हैं। कितने पोल्स हैं, दो पोल्स हैं, 3 एंड 5। एंड बिकॉज ऑफ two poles are there, this is not isolated singular point, इसको हम क्या बोलेंगे, simple pole। isolated pole is also a simple pole, but वो सिर्फ एक अकेला था इसलिए उसको हम isolated भी बोलते हैं। सेकेंड एग्जांपल में आप देखो यहाँ पे दो अलग अलग पोल्स मिल रहे हैं, एक 3 और एक 5, दो डिफरेंट वैल्यू, इसीलिए इसको हम बोलेंगे सिंपल पोल। नाउ थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन f of z is equal to 1/z-4 whole cube। So fraction is 1/z-4 whole cube. That means this function is not defined at z is equal to 4, but denominator is of third degree. मतलब z is equal to 4, 4, 4. 3 times आएगा ना, z-4 whole cube. Denominator is 0. That means z is equal to 4, 4 and 4. Sorry. So same value repeated 3 times. That's why this type of pole is known as multiple pole of order 3. Order मतलब repetition, वो particular pole, वो particular point जितनी बार repeat हो रहा है, that is known as order. So z is equal to 4 is multiple pole of order 3. Clear? So singularities, pole clear, isolated, simple and multiple poles. Closed curve, simple closed curve, closed region, multiple connected region. Clear सबको? Next slide please. Okay. तो अब इस पे बेस्ड प्रॉब्लम कैसे रहते हैं, तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन along closed curve C 3z square plus 1 upon z square minus 1 dz where C is equal to mod z is equal to 2। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रॉब्लम में हमको C देखना है कि C क्या है, क्लोज्ड कर्व है तो किस टाइप का क्लोज्ड कर्व है, ठीक है। So mod of z is equal to 2, that means z is x plus iy, so mod of x plus iy is equal to 2 and magnitude of complex number is equal to under root of x square plus y square is equal to 2, so x square plus y square is equal to 2 square। So x square plus y square is equal to 2 square मतलब क्या है, it is a circle, center at origin and radius is 2, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉ सर्कल, आप देखो सबको दिख रहा है यहाँ पे, सर्कल, सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 2, रेडियस 2 है तो यहाँ पे हम 4 पॉइंट्स लिखेंगे। एक चीज और ध्यान रखो, ये कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है दैट इज कॉल्ड एज रियल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस इन जनरल हमको y एक्सिस बोलने की आदत रहती है, x एक्सिस y एक्सिस, सो वर्टिकल एक्सिस इज नोन एज इमेजिनरी एक्सिस because y is the imaginary part of complex number na, so y axis is known as imaginary axis and x axis is known as real axis, right? So radius is 2, तो इस सर्कल के 4 पॉइंट्स हम लिख लेंगे यहाँ पे 2, 0, 0, 2, -2, 0 एंड 0, -2। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमको किसमें निकालनी है, विद इन दिस सर्कल, विद इन एंड ऑन दी पॉइंट्स। इस सर्कल के अंदर जितना भी एरिया कवर हो रहा है सिर्फ हमको उतने से ही मतलब है, सर्कल के बाहर से हमको कुछ मतलब नहीं, ठीक है। अब हम निकालेंगे पोल्स। पोल्स मतलब क्या होता है, जहां पे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड का मतलब क्या हुआ, जहां पे फ्रैक्शन इनफाइनाइट हो है, मतलब डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर 0 मतलब z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। Now z square minus 1 is equal to 0, that means z is equal to 1 and z is equal to -2, ठीक है। Now z is equal to 1, अब z is equal to 1 मतलब पॉइंट कौन सा रहेगा, वो ये आपको दिख रहा है, हमने रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस बनाया तो इसमें वो पॉइंट कौन सा रहेगा, तो z मतलब क्या होता है x plus iy, x plus iy is equal to 1,
x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1। अब आप देखो इधर 1 है, इधर x प्लस आई वाई है, तो इक्वेट रियल पार्ट ऑन बोथ साइड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड। सो रियल x इज इक्वल टू 1, इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू 0। सो z इज इक्वल टू 1 मतलब कौन सा पॉइंट हो गया, 1, 0। एंड z इज इक्वल टू -1 मतलब कौन सा पॉइंट हुआ, -1, 0। एनी डाउट, क्लियर? अब जो हमारा C बना हुआ है, जो हमारा क्लोज्ड कर्व है, उस उस पे हम ये दोनों पॉइंट प्लॉट करेंगे और हमको ये चेक करना है कि कौन से पॉइंट कर्व के अंदर है, कौन से पॉइंट कर्व के बाहर है। कॉचीज थ्योरम के स्टेटमेंट में आपने पढ़ा है A is the point lies inside and on the circle C, on the curve C। मतलब A जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर या ऑन दी सर्कल होना चाहिए, बाउंड्री पे होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो 1,0, 1,0 को अगर हम इस कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करते हैं तो 1,0 ऑब्वियसली सर्कल के अंदर आएगा बिकॉज रेडियस इज 2, राइट? रेडियस इज 2, सर्कल के अंदर आएगा। So 1,0 lies inside the circle. Similarly, -1,0 also lies inside the circle because radius is 2. तो नेगेटिव साइड भी x एक्सिस में -2 तक इसका रेडियस है। So both the points or both the poles lies inside the circle. Therefore, Cauchy's integral, अच्छा एक चीज और ध्यान दो यहाँ पे आप लोग, z is equal to 1 and z is equal to -1। कौन से पोल है, बोथ आर सिंपल, 1 एक बार आ रहा है, -1 एक बार आ रहा है, तो सिंपल पोल। ठीक है, सो बोथ द पोल्स लाइज इनसाइड द सर्कल, सो कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला एप्लीकेबल ऑन बोथ। ठीक है, अब अपने को निकालना क्या है, इंटीग्रल अलोंग क्लोज्ड कर्व C 3z² + 1 अपॉन z² - 1 dz इज इक्वल टू z² - 1 को हम z - 1 z + 1 लिखेंगे। तो एक बार z - 1 डिनोमिनेटर में, जस्ट एडजस्ट दिस इंटीग्रेशन इनटू द फॉर्मूला। So integral along C1 3z² + 1 upon z + 1 whole upon z - 1 and integration along C2 3z² + 1 upon z - 1 whole upon z + 1 dz। अब आप इस इंटीग्रेशन को कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला से अगर आप कंपेयर करते हो तो आपको समझ में आएगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन में f ऑफ z इज पूरा न्यूमरेटर 3z² + 1 upon z + 1 और सेकेंड इंटीग्रेशन में f ऑफ z इज 3z² + 1 upon z - 1, राइट? So according to Cauchy's integral formula, value of the first integration is 2 pi I f of z at z is equal to 1 plus second integration की value 2 pi I 3z² plus 1 upon z minus 1 at z is equal to -1. It's clear? Next slide, please. Madam, please, next slide. So it is equal to 2 pi I. फर्स्ट में हम z is equal to 1 रखेंगे, सेकेंड में z is equal to -1 रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इट इज इक्वल टू 0। So value of the integration within the C is equal to 0. ठीक है, no need to solve integration, the whole integration, right? Now check second problem. Evaluate integral along closed curve C z plus 4 z² plus 2z plus 5 dz where C is the circle, z plus 1 is equal to 1। याद रखो, सबसे पहले हमको सर्कल या क्लोज्ड कर्व क्या है वही देखना है हर बार, उसी पे डिपेंड करेगा कि पोल उस कर्व के बाहर है या अंदर है। ठीक है, तो फर्स्ट सॉल्व इक्वेशन ऑफ सर्कल, z plus 1 is equal to 1, so z is equal to x plus iy, so x plus iy plus 1 is equal to 1। अब 1 रियल पार्ट है इसलिए वो x के साथ उसको हम क्लब करेंगे, तो कैसा इक्वेशन बनेगा, इट इज मॉड ऑफ x plus 1 plus iy is equal to 1। So x plus 1 plus iy is complex number, its magnitude is under root of square of real part plus square of imaginary part, ऐसा ही है। So real part of this complex number is x plus 1
So x plus 1 whole square plus y square is equal to 1. So x plus 1 whole square plus y square is equal to 1 square. This is again equation of circle, but रेडियस कितना है इसका 1 एंड सेंटर कहां पे रहेगा -1, -0. ठीक है. सो ड्रॉ द क्लोज्ड कर्व. इट इज अ सर्कल विथ सेंटर एट -1, 0 एंड रेडियस इज 1. सो इट पासेस थ्रू ओरिजिन. इस तरह से हमने रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, सेंटर और सर्कल बनाया. अब हम चेक करेंगे इसके पोल्स. पोल्स मतलब पॉइंट्स वेयर फंक्शन टेंड टू infinity. Function is not defined, means denominator tend to 0. तो denominator क्या है? Z square plus 2Z plus 5 is equal to 0. Now Z square plus 2Z plus 5 is equal to 0. That means Z is equal to -1 plus -2i. Right? -1 plus -2i. So z is equal to -1 plus 2i. मतलब ये पॉइंट कौन सा होगा? तो z की वैल्यू क्या है? x plus iy. तो x मतलब रियल पार्ट. So रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज -1. इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज 2. तो पॉइंट कौन सा हो गया? -1, 2. ठीक. सेकेंड पॉइंट -1 -2i. तो पॉइंट कौन सा होगा? रियल पार्ट -1, इमेजिनरी पार्ट -2. 1 घंटा नहीं आना है. तो -1 -2. So first point is -1, 2. Second point is -1, -2. Now plot these points on the this graph, this coordinate plane. So -1, x is -1 and y is equal to 2. y is equal to 2 मतलब हमको हाइट लेनी है, इमेजिनरी एक्सिस पे 2 लेना है. और ध्यान दो यहाँ पे रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1. So obviously -1, 2 lies outside the closed curve C. Similarly, -1, -2 also lies outside the circle. ठीक है. तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में पोल कितने हैं हमारे? 2. और दोनों पोल कहाँ पे हैं? सर्कल के बाहर, क्लोज्ड कर्व के बाहर हैं. इसका मतलब उस सर्कल के अंदर जो सर्कल हमको दिया है z plus 1 is equal to 1, इस सर्कल के अंदर एक भी सिंगुलैरिटी एग्जिस्ट नहीं है. अकॉर्डिंग टू कॉचीज फॉर्मूला ए कहाँ पे होना चाहिए? इनसाइड एंड ऑन अ क्लोज्ड कर्व सी. बट यहाँ पे एक कहाँ पे दिख रहा है हमको? 2 है और दोनों के दोनों कहाँ पे है? आउटसाइड द सर्कल. देयरफॉर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी? 0. डायरेक्टली राइट इट 0. मैडम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड. Both the poles lies outside the circle, therefore function is analytic everywhere inside and on the circle, and hence by Cauchy's integral formula value of integration is equal to 0. आप कंपेयर करो इस प्रॉब्लम को पहले वाले प्रॉब्लम से. पहले प्रॉब्लम में पोल हमारे आए थे 1 और -1, मतलब 1 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं था, -1 पर भी फंक्शन डिफाइंड नहीं था, और दोनों कहाँ पे थे? सर्कल के अंदर. इसलिए हम कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में जो 2 पोल आए हैं वो दोनों की पोजीशन कहाँ थी? आउटसाइड द क्लोज्ड कर्व. दैट्स व्हाई बाय कॉचीज इंटीग्रल फॉर्मूला वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन इज 0. क्लियर. अब आप थर्ड प्रॉब्लम. इवैल्यूएट इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड कर्व C e to the power z upon z plus 1 whole square dz, where C is the circle. Mod of z plus 1 is equal to 3. As usual, सबसे पहले हम कर्व सॉल्व करेंगे. So mod of z plus 1 is equal to 3. That means substitute the value of z, that is x plus iy minus 1. Minus 1 is real part, so club with x. So x minus 1 plus iy is equal to 3. And magnitude of this complex number is under root of x minus 1 whole square plus y square is equal to 3. So x minus 1 whole square plus y square is equal to 3 square. So this is again the equation of circle.
whose center at 1,0 and radius is 3. ध्यान दो रेडियस कितना है 3. तो सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे. रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस 1,0 सर्कल बना एंड बिकॉज ऑफ रेडियस इज 3 1,0 पे टुवर्ड्स अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में रियल एक्सिस पे जाएंगे तो रेडियस 3 है, मतलब वहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया 3. तो वो पॉइंट कौन सा हो जाएगा 4,0, राइट. और ऐसे ही 1,0 पे अगर हम खड़े रह के निगेटिव साइड में रियल एक्सिस की तरफ जाएंगे 3 यूनिट्स बिकॉज 3 इज द सर्कल ना, तो वो पॉइंट कौन सा रहेगा -2,0. क्लियर. तो ये हमारा बन गया सर्कल क्लोज्ड कर्व. अब हम निकालेंगे पोल्स. पोल्स मतलब जहां पे डिनोमिनेटर 0 होता है, जहां पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट होती है. सो z + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. That means z is equal to -1 -1, right? अब आप यहाँ पे ध्यान दो z is equal to -1, same value repeated 2 times. That means this is a multiple pole of order 2. Clear? Z is equal to -1 is a multiple pole of order 2. Now z is equal to -1 means कौन सा पॉइंट आएगा -1,0. ठीक है. So plot this point on this coordinate plane. -1,0 lies inside the circle, क्योंकि जब हम रेडियस की तरफ निगेटिव साइड में जाते हैं और रेडियस इज 3 है तो -2,0 हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है. तो -1,0 कहाँ पे आएगा इनसाइड द सर्कल. ठीक है मैडम. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So integration along closed curve C e to the power z upon z + 1 whole square dz is equal to, अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मल्टीपल कनेक्टेड रीजन वाला फॉर्मूला 2 pi I upon factorial 1 d by dz of e to the power z at z is equal to -1, right. Factorial 1 is 1, so 2 pi I derivative of e to the power z is e to the power z, and at z is equal to -1, it is e to the power -1. So value of the function, value of the integration along closed curve C e to the power z upon z + 1 whole square dz is equal to 2 pi I e to the power -1, right. अब जब हम प्रॉब्लम्स करते हैं तो अपने को आप लग रहा होगा कि मैक्सिमम प्रॉब्लम सर्कल के ही क्यों है. जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में रहे होंगे तब आप सबने ये टॉपिक पढ़ा होगा और मैक्सिमम प्रॉब्लम सर्कल के ही रहते हैं. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखेंगे जो सर्कल नहीं है, कोई भी क्लोज्ड कर्व रहेगा, कोई भी सिंपल क्लोज्ड कर्व. ठीक है. तो आप नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो. इवैल्यूएट इंटीग्रल अलोंग क्लोज्ड कर्व C z³ + sin z upon z - I whole cube dz, where C is the boundary of the square with vertices z is equal to 2, z is equal to -2, z is equal to 2i and z is equal to -2, right. क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पे C क्या है स्क्वायर है जिसके वर्टाइसेस दिए हुए हैं. z is equal to 2. अब z is equal to 2 का मतलब पॉइंट कौन सा रहेगा 2,0. इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं उसमें. z is equal to -2 मतलब पॉइंट कौन सा रहेगा -2,0. z is equal to 2i मतलब पॉइंट कौन सा रहेगा. अब यहाँ पे ध्यान दो z is equal to 2i रियल पार्ट नहीं है तो x is 0, तो 0,2 and z is equal to minus of 2i, that means 0, -2, right. So one just typing mistake is there. यहाँ पे ये जो पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को x 0,2 चाहिए, वहां पे गलती से 0, -2 हो गया है इमेजिनरी एक्सिस की. इट इज 0,2. सो 2,0, 0,2, -2,0 एंड 0, -2 ये चार क्या है वर्टाइसेस ऑफ द स्क्वायर. तो इस तरह से हमारा ये एक स्क्वायर बन गया. क्लियर. रीजन सबको समझ में आ रहा है. अब हम क्या निकालेंगे पोल. पोल मतलब जहां पे फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0. तो डिनोमिनेटर क्या है z - 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 0. z - 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स z इज इक्वल टू I
and I means Z is equal to I is multiple pole of order 3. 3 बार repeat हो रहा है, that means order 3. Clear? And Z is equal to I मतलब 0,1 point. I है ना real part 0 और imaginary part 1. तो 0,1. अब जब आपने ये स्क्वायर बनाया तब आपको समझ में आएगा 0,1 लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस ना, और स्क्वायर के अंदर ही रहेगा. तो यहाँ पर जो पोल है लाइज इनसाइड दिस सर्कल, means in that closed circle this function has only one singular point and therefore Cauchy's formula is applicable. Right? Madam, please next slide. So according to Cauchy's formula, integral over C z cube plus sin z upon z minus I whole cube dz is equal to, अब यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर इज होल क्यूब. क्यूब को हम क्या लिखेंगे 2 + 1. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमको एडजस्ट करना है. फॉर्मूले में क्या है n + 1, तो 3 को हम क्या लिखेंगे 2 + 1. दैट मींस n इज इक्वल टू 2. So 2 pi I upon factorial to second order derivative of f of z, और अपना f of z क्या है z cube plus sin z. इस पॉइंट पे at z is equal to I. Clear? So 2 and factorial 2 cancel, pi I, differentiate one time. So d by dz, derivative of z cube is 3z square, derivative of sin z is cos z. Right? Now again differentiate. So pi I as it is, derivative is 6z, derivative of cos z is minus of sin z at z is equal to I, and substitute z is equal to I. So pi I into 6i minus of sin I, or the value of integration is equal to minus of 6 pi minus pi I into sin I. Clear? Okay. एक और प्रॉब्लम देखो, इवेल्युएट इंटीग्रेशन 1 upon z square plus 4 dz where c is 4x square plus y minus 2 whole square is equal to 4. ठीक है, so 4x square plus y minus 2 whole square is equal to 4. तो इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना पड़ेगा पहले कि ये क्या दिख रहा है. So 4x square plus y minus 2 whole square is equal to 4. Divide both side by 4, तो आ गया x square upon 1 square plus y minus 2 whole square upon 2 square is equal to 1. And this equation little bit similar with equation of ellipse. समझ में आ रहा है ना, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. तो यहाँ पे y की जगह क्या है y minus 2. So center of this ellipse at 0,2. ठीक है. Then find poles. Poles means denominator 0. So z square plus 4 is equal to 0. So z is equal to 2i and z is equal to minus 2i. So z is equal to 2i. Point कौन सा रहेगा 0,2. Z is equal to minus 2i मतलब 0, minus 2. Clear इतना? Next slide please. So इस तरह से हमने सबसे पहले बनाया C. It is an ellipse with center at 0,2. ठीक है. Major axis x axis means real axis, minor is imaginary axis. ठीक है. Okay. अब z is equal to 2i. Z is equal to 2i मतलब क्या रहेगा 0,2. अब आप ellipse पे देखो 0,2 lies inside the ellipse and 0, minus 2 lies outside the ellipse. तो 0,2 एंड 0, minus 2. तो अब आप देखो इस प्रॉब्लम में सिर्फ एक पॉइंट कर्व के अंदर है, दूसरा पॉइंट कर्व के बाहर है. हमको कौन से पॉइंट पे ध्यान देना है? जो क्लोज्ड कर्व के अंदर रहेगा. तो यहाँ पे हम किस पॉइंट पे अब ध्यान देंगे? z is equal to 2i. इस पॉइंट पे ध्यान देंगे. z is equal to 2i पे नहीं. किसकी वैल्यू निकालना है? इंटीग्रेशन 1 upon z square plus 4 dz. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 upon z minus 2i z plus 2i dz. कौन सा पॉइंट सर्कल इलिप्स के अंदर है? z is equal to 2i.
तो डिनोमिनेटर में सिर्फ z माइनस 2i रखेंगे और बाकी सबको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे. So 1 upon z plus 2i, right? And then apply Cauchy's formula. So it is 2 pi I 1 upon z plus 2i at point z is equal to 2i. So z is equal to 2i रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन इज पाई बाय 2. ठीक है, तो इस तरह से कॉचीज फॉर्मूला एंड कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम एप्लीकेबल है. इसमें आपको मेन चीज ध्यान में रखना है. तो सबसे पहले आपको क्लोज्ड कर्व समझ में आना चाहिए, क्लोज्ड कर्व को ड्रॉ करते आना चाहिए. उसके बाद आपको पोल्स निकालने हैं, उन पोल्स को लोकेट करना है. जो पोल्स इनसाइड एंड ऑन दी क्लोज्ड कर्व रहेंगे उसी पे कॉचीज फॉर्मूला एप्लीकेबल है. जो पोल्स आउटसाइड रहेंगे उनको हमको छोड़ देंगे. क्लियर? सिंपल पोल एक वैल्यू एक बार, मल्टीपल पोल एक वैल्यू मोर देन 1 टाइम्स, 2 बार 3 बार 4 बार. और ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशंस. क्लियर सबको? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड मैडम. नाउ नेक्स्ट इज टेलर्स थ्योरम. If f of z is analytic inside the circle C, ध्यान दो यहाँ पे अभी. इफ f of z is analytic मतलब f of z को क्या होना चाहिए? एनालिटिक होना ही चाहिए. इनसाइड द सर्कल C, ठीक है, विथ अ सेंटर एट z इज इक्वल टू a. कहां पर उसको एनालिटिक होना चाहिए? C सर्कल के अंदर. और C सर्कल है मतलब कैसा कर्व है? सिंपल क्लोज्ड कर्व है. उसका सेंटर क्या है? A. Then f of z can be expressed in the form of series that is known as Taylor series. F of z is equal to f of a plus z minus a f dash a plus z minus a whole square upon factorial 2 f double dash a plus z minus a whole cube upon factorial 3 f triple dash a plus up to so on. f of z is analytic. अब आप एनालिटिक सिर्फ नाम छोटा है पर उसका मतलब बहुत ज्यादा है. आप समझो अच्छे से इसको. एनालिटिक है मतलब CR कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब फंक्शन डिफाइंड है. ठीक है, सो इफ f of z is analytic inside the circle C with center at A, then f of z is equal to सीरीज. सीरीज बहुत सिंपल है. इसके हम 2-3 प्रॉब्लम करेंगे. आप देखो क्या है. एक्सपांड log of 1 plus z about z is equal to 0 by using Taylor's expansion. about z is equal to 0 का मतलब z is equal to 0 को सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करना है और उस सर्कल के अंदर log 1 plus z किस तरह से एक्सपांड होगा ये हमको बताना है. एक्सपांशन बताना एकदम इजी है. आप ध्यान दो. We have to expand f of z. It is equal to log of 1 plus z. किस पॉइंट के अबाउट हमको इसको एक्सपांड करना है? At z is equal to 0. ठीक है, और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारे पास उसमें हम किस पॉइंट के अराउंड करते हैं? At z is equal to 1. मतलब a की वैल्यू क्या है इस प्रॉब्लम में? 0. ओके, तो आप देखो एक्सपांशन में हर जगह फंक्शन का क्या लग रहा है? फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना. तो f of z is equal to क्या है? log of 1 plus z. तो हम निकालेंगे f dash. f dash z simple differentiate log function. It is 1 upon 1 plus z. f double dash minus 1 upon 1 plus z whole square. f triple dash 2 upon 1 plus z whole cube. I think differentiation में प्रॉब्लम नहीं है किसी को, है ना. फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव अगेन -6 1 plus z whole to the power 4. और ये सारी वैल्यूज हम किस पॉइंट पे निकालेंगे? at z is equal to 0. ठीक है, तो at z is equal to 0 what is f of 0? log of 1 plus 0 that is log 1. It is equal to 0. f dash 0
1 upon 1 plus 0 1, f double dash 0 minus 1 upon 1 plus 0 whole square minus 1, f triple dash 2 upon 1 plus 0 whole cube 2, and fourth order derivative at 0 minus 6 upon 1 plus 0 whole to the power 4, that is minus 6. Right? Next slide, please. Madam, next slide, please. We know that the Taylor's expansion is, in our problem, f of z is log of 1 plus z and a is equal to 0. तो उस टर्म में टेलर सीरीज क्या हो जाएगी? log of 1 plus z, f of 0 plus z minus 0 f dash 0 plus z minus 0 whole square upon factorial to f double dash 0 and so on. अब ये सारी वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हुई है, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे. So log of 1 plus z is equal to 0 plus z minus 0 into 1, z minus 0 whole square upon factorial 2 into minus 1, z minus 0 whole cube upon factorial 3 into 2, z minus 0 whole to the power 4 upon factorial 4 into minus 6 and up to so. ठीक है? So log of 1 plus z is equal to z minus z square by 2 plus z cube by 3 minus z to the power 4 by 4 and up to so on. So this is expansion of the function by using Taylor's expansion, Taylor's theorem about the point z is equal to 0. Clear? एक और प्रॉब्लम देखेंगे. Expand 1 upon z square minus of z minus 6 about z is equal to minus 1. By using Taylor's expansion, also find the region of convergence. तो पहले हम expansion देखेंगे, फिर region of convergence क्या होता है ये बताती हूँ. So we have to expand f of z is equal to 1 upon z square minus z minus 6 about z is equal to minus 1. इसका मतलब यहाँ पे अब a मतलब क्या है? माइनस. ठीक है. नाउ फंक्शन 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस z माइनस 6. एक चीज यहाँ पे भी ध्यान देना, कभी भी जब हम एक्सपांड करते हैं फंक्शन को, तो आप देखो 1 अपॉन z स्क्वायर माइनस 1 माइनस z माइनस 6. फंक्शन को एक्सपांड करना है मतलब उसका फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालना है. ठीक है. जब हम इस फंक्शन को एज इट इज बिना सिंप्लीफाई किए अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा. कोशेंट रूल लगाएंगे एक बार, कोशेंट रूल में डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा. दोबारा से लगाएंगे तो और स्क्वायर होते जाएगा, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है. ठीक है. तो पहले उसके डेरिवेटिव्स निकालने के भी पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है. फंक्शन को सिंप्लीफाई करना है. अब यहाँ पे फंक्शन मतलब फ्रैक्शन का फॉर्म है, इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है मतलब इसको हमको रिड्यूस करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन में. आई होप पार्शियल फ्रैक्शन आता होगा आप लोगों को. इसके बाद मैं आपको पार्शियल फ्रैक्शन भी बताती हूँ किस तरह से रहेगा पार्शियल फ्रैक्शन. तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करेंगे, तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करने की सबसे पहली कंडीशन क्या है? किस फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस कर सकते हैं? डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से हमेशा ज्यादा होनी चाहिए. यहाँ पे जो आपको फंक्शन दिख रहा है उसमें न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? 1, सॉरी 0. न्यूमरेटर इज 1, दैट मीन्स डिग्री इज 0 एंड डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 2. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना. तो यहाँ पे इस फ्रैक्शन को हम डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. सो 1 अपॉन z square minus z minus 6 just factorize into real and linear factors. So z minus 3 z plus 2 and partial fraction इसका क्या है? 1 upon 5 1 upon z minus 3 minus 1 upon z plus 2. ये हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस किया. मैडम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अब फिर से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑर्डर तक के हमको डिफरेंशिएट करना है. तो अब अपना एफ ऑफ जेड क्या है? 1 अपॉन 5
1/z-3 माइनस 1/z+2। तो ये जो फंक्शन है इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सिंप्लीफाई कर लिया, तो अब हमको यहाँ पे ना कोशेंट रूल लगाना है ना कोई और रूल लगाना है, डायरेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट करें। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का ये एक फायदा रहता है। तो f dash z is equal to 1/5 is constant and derivative of 1/z-3 is minus 1/z-3 whole square. Next, minus as it is 1/z+2 का derivative minus 1/z+2 whole square. Clear? f double dash 1/5 again constant 2/z-3 whole cube minus 2/z+2 whole cube. Next derivative 1/5 minus 2 into 3 6, that is known as factorial 3 upon z-3 whole to the power 4 minus factorial 3 z minus plus power 4. एक और अगर निकालेंगे तो factorial 4 upon z-3 whole to the power 5 factorial 4 upon z+2 whole to the power 5. आप देख रहे हो इस टाइप से सिंप्लीफाई करने से सिर्फ 4 के आप 5 6 10 12 15 ऑर्डर तक के डेरिवेटिव बिना किसी कैलकुलेशन के फटाफट एक के नीचे एक लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए फंक्शन को सिंप्लीफाई करना चाहिए। अब ये सारे ये एक्सपांशन हमको किस पॉइंट के अबाउट करना है, z इज इक्वल टू -1। So find all the derivatives at z is equal to -1. So f of -1 minus 1/4. Sorry. f dash -1 3/16. f double dash -1 minus 13/32. Third order derivative minus 153/128 and so on. So Taylor's expansion अपना f of z क्या है यहाँ पे 1/z² minus of z minus of 6. a मतलब क्या है -1, तो f of -1 z minus of -1 that is z plus 1. So z plus 1 f dash -1 plus z plus 1 whole square upon factorial 2 f double dash -1 plus z plus 1 whole cube upon factorial 3 f triple dash z plus 1 whole to the power 4 upon factorial 4 fourth order derivative, right? And just substitute all the calculated values. Next slide please. So substitute these values, so you get expansion of the given function by using Taylor's expansion about the point z is equal to -1. Clear? ठीक है, अब हम समझेंगे कन्वर्जेंस क्या है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, राइट? ओके, ध्यान से देखो किस फंक्शन को हमको एक्सपांड करना था यहाँ पे 1/z² minus of z minus 6, इस फंक्शन को एक्सपांड करना था। अब हम इसके पोल्स निकालते हैं। पोल्स मतलब क्या रहते हैं, पॉइंट्स वेयर डिनोमिनेटर बिकेम 0, मतलब z² minus z minus 6 is equal to 0. So z is equal to 3 and z is equal to -2. दो पॉइंट्स इसके पोल आ गए। क्लियर यहां तक? ठीक है, इस फंक्शन को किस पॉइंट के अबाउट हमको एक्सपांड करना है, z इज इक्वल टू -, ठीक है? ओके, अब आप नंबर लाइन पे इन पॉइंट्स को देखो, नीचे नंबर लाइन बनी हुई है, सब आप देखो 0 1 2 3 -1 -2 दिख रहे हैं सबको पॉइंट। अब z इज इक्वल टू -1 के अबाउट हमको एक्सपांड करना है, मतलब z इज इक्वल टू -1 इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है? सो z इज इक्वल टू -1 इज द सेंटर। ओके, अब एक चीज और यहाँ पे आप लोग समझो, टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ था, f of z इज एनालिटिक। कहाँ पे एनालिटिक था? इनसाइड दी सर्कल C विथ सेंटर एट A, ऐसा था। मतलब उस सर्कल के अंदर सब जगह फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। एनालिटिक होना चाहिए मतलब
CR कंडीशन सेटिस्फाई होंगी एंड हेंस डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट होंगे, डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन, ठीक है। जब हम z इज इक्वल टू -1 के अराउंड हम सर्कल बनाएंगे, -1 को सेंटर कंसीडर करके, कितने सर्कल बना सकते हैं हम, कितने भी सर्कल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्कल बनाते समय हमको ध्यान में रखना है कि जो दो सिंगुलर पॉइंट्स आए हैं वो दोनों सिंगुलर पॉइंट सर्कल के अंदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये दोनों सिंगुलर पॉइंट सर्कल के अंदर आ जाते हैं तो f ऑफ z उस सर्कल के अंदर सब जगह एनालिटिक रह पाएगा क्या, नहीं रह पाएगा, क्योंकि z इज इक्वल टू 3 और z इज इक्वल टू -2, इस दो पॉइंट पे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है ना। तो z इज इक्वल टू -1 को सेंटर कंसीडर करके हमको एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है कि z इज इक्वल टू 3 ये पॉइंट भी सर्कल के बाहर रहना चाहिए और z इज इक्वल टू -2 ये पॉइंट भी सर्कल के बाहर रहना चाहिए, ठीक है। मतलब अब हमको रेडियस ऐसा सोचना है क्या रहेगा। अब आप देखो -1 और 3 इनका डिस्टेंस कितना है नंबर लाइन पे, समझ में आ रहा है आपको, -1 और 3 का डिस्टेंस आप देखो 1 2 3 4 यूनिट्स है, -1 और -2 का डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट, क्लियर। तो रेडियस हम कितना रखेंगे कि ये दोनों पॉइंट बाहर आना चाहिए, रेडियस हमारा रहना चाहिए 1 से कम, क्योंकि अगर 1 और 4 इतना दो पॉइंट का डिस्टेंस है, 4 से कम तो 3 चलता है, लेकिन अगर 3 रेडियस का अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो -2 इसके अंदर आ जाएगा, हमको -2 को भी बाहर रखना है, 3 को भी बाहर रखना है, क्लियर। और -2 से डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट, इसीलिए -1 को सेंटर कंसीडर करते हुए रेडियस किससे लेस रहना चाहिए, -1 से लेस होना चाहिए, क्लियर। आप देखो यहाँ पे now the distance of the point z is equal to -1 from two poles कितने हैं 4 and 1 units respectively, therefore if we consider the circle C with center at z is equal to 1 and radius less than 1, that is z plus 1 less than 1, mod of z plus 1 is less than 1, मतलब इसका जो भी रेडियस है कितना होना चाहिए 1 से कम होना चाहिए, मतलब उस सर्कल के अंदर f of z क्या हो जाएगा, analytic inside and on the circle, analytic everywhere, then f of z can be expanded in Taylor series. Therefore, region of integration, region of convergence is mod of z plus 1 is less than 1. क्लियर आपको, एक्सपांड करना तो ठीक है, वो फॉर्मूला उसको याद रखो, उसमें सारे डेरिवेटिव्स निकालो, जिस पॉइंट के अबाउट एक्सपांड करना है वो वैल्यूज निकालो और लिख देना, एक्सपांशन इज वेरी इजी। बट व्हाट इज कन्वर्जेंस, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, कितने सर्कल में कितने क्लोज्ड कर्व में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कितने क्लोज्ड कर्व में हम फंक्शन को एक्सपांड कर सकते हैं, तो ऐसा सर्कल बनेगा जिसका रेडियस 1 से कम होना चाहिए, सेंटर एट -1 रेडियस लेस देन 1, वो है इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। अगर रेडियस की वैल्यू 1 से थोड़ी भी ज्यादा हो गई या एग्जैक्ट इक्वल टू 1 हो गई तो उस फंक्शन को पर्टिकुलर सर्कल में हम एक्सपांड नहीं कर सकते, क्योंकि z इज इक्वल टू -2 उस सर्कल के अंदर आ जाएगा और z इज इक्वल टू -2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है, क्लियर सबको। सो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस क्लियर, ओके नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट है लॉरेंट्स एक्सपांशन। तो लॉरेंट्स एक्सपांशन के लिए हमको ऊपर जो दो रिजल्ट्स दिख रहे हैं वो रिजल्ट बहुत यूज होगा, तो वो रिजल्ट देख लो आप क्या है, 1 plus x inverse is 1 minus x plus x square minus x cube plus up to so on, but what is the condition, mod of x is less than 1। यहाँ ये जो एक्सपांशन दिख रहा है किसका एक्सपांशन लिखा हमने यहाँ पे 1 plus x इनवर्स का, तो ये x की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है वो 1 से कम होनी चाहिए, ठीक है। सेकेंड रिजल्ट क्या है, 1 minus x इनवर्स इज इक्वल टू 1 plus x square plus x cube up to so on, again mod of x is less than 1, the magnitude value of x is less than 1, in that case these two expansions are valid, right। अब हम देखते हैं what is Lorentz expansion। if f of z is analytic in the ring shaped region R,
bounded by two concentric circles C1 and C2 of radii R1 and R2, where R1 is greater than R2 and with center at A. Lorentz expansion, जैसे आप लोगों को क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, मल्टीपल क्लोज्ड कर्व समझ में अगर आया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। टेलर्स एक्सपांशन तो हम किस में एक्सपांड कर सकते हैं? सिंपल क्लोज्ड कर्व। बट लॉरेंट्स एक्सपांशन किस में होता है? जो मल्टीपल क्लोज्ड कर्व है उसमें एक्सपांड होता है। तो लॉरेंट्स एक्सपांशन में आप देखो मल्टीपल क्लोज्ड कर्व है ना ये, ठीक है। C1 is outer circle, C2 is inner circle, R1 is radius of outer circle, R2 is radius of inner circle, A is the center of the both concentric circles. Clear? Then we can expand f of z is equal to A naught plus A1 z minus A plus A2 z minus A whole square plus up to so on An z minus A to the power n and up to so on plus in second bracket B1 upon z minus A, B2 upon z minus A whole square plus up to so on Bn upon z minus A to the power n plus up to so on. So this is expansion of Lorentz. This is Lorentz expansion of the function, where An is equal to 1 upon 2 pi I integration along C1, C1 means outer circle, integration along C1 f of z upon z minus A to the power n plus 1 dz, where n is 0, 1, 2, 3, and Bn is equal to 1 upon 2 pi I integration of C2 f of z upon z minus A to the power minus n plus 1 dz, where n is equal to 1, 2, 3, 4 up to so on. Right? So this is A1 and Bn, and this expansion is expansion of the function by Lorentz series. So next slide, please. So पार्शियल फ्रैक्शन एक बार देख लेते हैं अच्छे से। मुझे एक्चुअली बाद में ध्यान आया कि पार्शियल फ्रैक्शन बताना चाहिए था। सो पार्शियल फ्रैक्शन एक बार देख लो किस तरह से रहता है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम बनते नहीं। सो फर्स्ट रूल, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। ये चेक करने के बाद रिड्यूस द डिनोमिनेटर इनटू रियल एंड लीनियर फैक्टर्स। पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करना है तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं यहाँ पे देखो। f of x न्यूमरेटर है, इफ डिनोमिनेटर इज x माइनस ए x माइनस बी, और ये जो फ्रैक्शन लिखे हैं ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए यहाँ हम ये कंडीशन मान के चलते हैं कि डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर की डिग्री कम है डिनोमिनेटर से, ऐसा मान के जनरल लिखा हुआ है मैंने f of x अपॉन x माइनस ए x माइनस बी। तो इसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे? सम कांस्टेंट a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस सेकंड कांस्टेंट b अपॉन सेकंड फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे ये जो दो फैक्टर्स हैं ये दोनों लीनियर और रियल है, इसलिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन ऐसा। ठीक है, इसके साथ अगर तीसरा फैक्टर भी x माइनस सी तो ऑब्वियसली एक टर्म और बढ़ जाएगी c अपॉन x माइनस सी। याद रखो डिनोमिनेटर की जितनी डिग्री रहती है उतने ही कांस्टेंट पार्शियल फ्रैक्शन में आएंगे। पहले एग्जांपल में देखो डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी थी 2, तो a और b सिर्फ दो कांस्टेंट है। दूसरे इसमें देखो डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 3, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन में कितने कांस्टेंट आ रहे हैं 3, a b एंड c। थर्ड टाइप ऑफ फ्रैक्शन f of x अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर इंटू x माइनस b x माइनस c, ऐसा आता है। तो x माइनस a होल स्क्वायर ये रिपीटेड फैक्टर है ना, x माइनस a इज अ लीनियर फैक्टर बट रिपीटेड 2 टाइम्स, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसा होगा a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस a होल स्क्वायर। फिर x माइनस b सिंपल है इसलिए c अपॉन x माइनस b,
चौथा फैक्टर x माइनस बी, c दैट इज ऑल्सो लीनियर एंड रियल, तो d अपॉन x माइनस सी। अब आप यहाँ पे देखो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 4, तो यहाँ पे इसके पार्शियल फ्रैक्शन में भी कितने कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं, 4। ठीक है, नेक्स्ट f ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस बी होल स्क्वायर, अगर इस टाइप का रहा तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके लीनियर फैक्टर नहीं हो सकते, इसलिए ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x माइनस बी इज लीनियर बट सेम फैक्टर रिपीटेड 2 टाइम्स, इसलिए एक बार एक फैक्टर लिखेंगे सिंगल, c अपॉन एक्स माइनस बी, नेक्स्ट टाइम क्वाड्रेटिक b अपॉन एक्स माइनस सी होल स्क्वायर, so ax plus b upon x square plus a square, c upon x minus b, d upon x minus c whole square। आप चेक करो, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 4 एंड a b c d 4 कांस्टेंट्स आर देयर। ठीक है, लास्ट वाला टाइप f ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ax प्लस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर x एंड cx प्लस d अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस b। क्लियर, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन करने का तरीका है। पार्शियल कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप अपना तरीका लगाओ, आप जिस मेथड से पार्शियल फ्रैक्शन करते आ रहे हो उस मेथड से पार्शियल फ्रैक्शन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट करेक्ट आना चाहिए ABCD। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो फर्स्ट प्रॉब्लम देखो, एक्सपांड f of z is equal to 1 upon z minus 1 z minus 2 in the region first mod z less than 1, second mod z lies between 1 and 2, and third mod z is greater than 2, actually it is mod z is greater than 2। ठीक, so first reduce this fraction into partial fraction। सबसे पहले जो भी फंक्शन है उसको सिंप्लीफाई करो, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करो। सो 1 अपॉन z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 2। ये हो गया इसका पार्शियल फ्रैक्शन। यहाँ पे आप देखो z माइनस 1 z माइनस 2 दोनों रियल और लीनियर है, तो पहले वाले टाइप होगा a अपॉन z माइनस 1 प्लस b अपॉन z माइनस 2। आप अपने तरीके से सॉल्व करो, a और b की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 प्लस 1 अपॉन z माइनस 2। नाउ फर्स्ट रीजन इज मॉड z इज लेस देन 1। अब आप फंक्शन को देखो, दोनों ये जो फंक्शन है इसमें दो टर्म दिख रही है, डिनोमिनेटर में है z माइनस 1, दूसरा डिनोमिनेटर है z माइनस 2। मतलब एक बार z को हमको 1 से कंपेयर करना है और दूसरी बार किससे कंपेयर करना है, 2 से। ठीक है, रीजन कौन सा है, मॉड ऑफ z इज लेस देन 1। ओके, अब आप देखो व्हेन मॉड z इज लेस देन 1 and 1 is less than 2, so mod z is automatically less than 2। मतलब जब हम z और 1 को कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें से z is less than 1, z और 2 को कंपेयर करेंगे तब भी z is less than 2। ठीक है, यहाँ पे हमको एक्सपांशन कौन सा यूज करना है, जो मैंने आपको बताया पहले, 1 प्लस एक्स इनवर्स और 1 माइनस एक्स इनवर्स को एक्सपांशन हमको यूज करते हैं। तो 1 प्लस एक्स इनवर्स और 1 माइनस एक्स इनवर्स जब हम ये एक्सपांशन यूज करते हैं तो यहाँ पे x के लिए कंडीशन क्या है, मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। क्लियर, मॉड ऑफ x इज लेस देन 1। अब मॉड x लेस देन 1 होना चाहिए, तो याद रखो डिनोमिनेटर में से हमेशा जो बड़ी क्वांटिटी है वो हम कॉमन निकालेंगे, मतलब मॉड वो कंडीशन ऑटोमेटिक सेटिस्फाई हो जाएगी। तो फंक्शन दिख रहा है यहाँ पे, सबसे पहले हम z को किससे कंपेयर करेंगे, 1 से कंपेयर करेंगे। तो z और 1 में कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, 1 बड़ा है, इसीलिए फर्स्ट टर्म में जो डिनोमिनेटर है z माइनस 1 वहां से हमको 1 कॉमन लेना है, बट 1 इज नेगेटिव तो माइनस 1 के साथ कॉमन लेंगे, माइनस साइन के साथ कॉमन लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इज कॉमन एंड 1 माइनस, राइट। सेकेंड टर्म में क्या फैक्टर दिख रहा है हमको, z माइनस 2। तो z और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो इसमें से बड़ी क्वांटिटी कौन सी दिख रही है, 2, इसलिए हम कॉमन लेंगे 2। यहाँ पे 2 भी निगेटिव है, माइनस 2 के साथ कॉमन लेंगे, तो माइनस 2 कॉमन, 1 माइनस z बाई 2। क्लियर, नाउ
1 1 कैंसिल, तो ये आ गया 1 माइनस जेड इनवर्स माइनस 1/2 1 माइनस z/2 इनवर्स। जैसे 1 अपॉन एक्स को हम एक्स इनवर्स लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही लिखा है 1 माइनस जेड इनवर्स, राइट। सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, अब 1 माइनस जेड इनवर्स, और जेड की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी है, मालूम है आपको, है ना। तो हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्सपांशन अप्लाई करेंगे, एंड 1 माइनस जेड इनवर्स इज 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस अप टू सो ऑन माइनस 1/2 1 माइनस z/2 इनवर्स, इसको भी एक्सपांड करना है, तो आप यहाँ पे ध्यान दो, 2 इज ग्रेटर देन z, so z minus 2 is less than 1, therefore the expansion of 1 minus x inverse, यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, that is 1 plus z/2 plus z/2 inverse plus z/2 whole cube and up to so on. So this is the expansion of given function f of z in the region mod of z less than 1 by using Lorentz expansion. Clear? Next slide please. Now second region, mod z lies between 1 and 2. mod of z lies between 1 and 2, मतलब जब हम z, देखो एक्सपांड करना है हमको, सेम फंक्शन है, उसी फंक्शन को हर बार चेंज क्या हो रहा है, रीजन। तो अब कौन सा रीजन है, when mod z is greater than 1 but less than 2, तो जब हम z और 1 को कंपेयर करेंगे तो बड़ी क्वांटिटी कौन सी है इसमें, z, इसीलिए पहले टर्म में से, डिनोमिनेटर में से हमने z कॉमन, और z और 2 को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, 2, तो हम सेकेंड टर्म में से क्या कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन। क्लियर? सो फ्रॉम द फर्स्ट टर्म -1 कॉमन, 1 minus 1 by z plus 2 is greater than z, so -2 is common, -2 1 minus z by 2, ठीक है। तो -1 by z, 1 minus 1 by z inverse minus 1/2 1 minus z by 2 inverse, and use that expansion, expand the function. This is expansion of same function in the different region, ठीक है। Now third region is mod z is greater than 2. Mod z is greater than 2. That means mod z is greater than 1 also. जब 2 से ही बड़ा है तो 1 से तो बड़ा ही रहेगा ना, mod z is greater than 1 also. So अब देखो फिर से सेम फंक्शन है, बट जब हम z और 1 को कंपेयर कर रहे हैं तो बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, z की। z और 2 को भी जब हम कंपेयर करेंगे तो फिर से बड़ी क्वांटिटी कौन सी है, z, इसीलिए अब दोनों टर्म में से हम कॉमन क्या लेंगे, z। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So from the first term z is common, second term z is common, so minus 1 by z, 1 minus 1 by z inverse plus 1 by z, 1 minus 2 by z inverse. So f of z is equal to expansion. This is expansion of the function in the third region. Clear? Next problem देखो, find Lorentz series expansion of f of z in the region when mod of z plus 2 lies between 3 and 5. Mod of z plus 2 lies between 3 and 5. So f of z is equal to function. अब आप देखो इसको भी हमको पार्शियल फ्रैक्शन में करना है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज 2, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 3, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डिनोमिनेटर में जितने भी फैक्टर्स हैं सारे लीनियर हैं, रियल है, इसको हम 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, a अपॉन z माइनस 1, b अपॉन z माइनस 3, c अपॉन z प्लस 2, एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a b c, we get 1 upon z minus 1 minus 1 upon z minus 3 plus 1 upon z plus 2, ठीक है। तो इसको जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस किया तो ये आ गया पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक। अब कौन सा रीजन है, आप रीजन ध्यान दो, रीजन है mod of z plus 2 lies between 3 and 5, हमारे पास सिर्फ z z z दिख रहा है आपको, है ना, तो z को पहले हम z plus 2 जैसा बनाएंगे, ठीक।
तो z माइनस 1 है, पहला फैक्टर देखो 1 अपॉन z माइनस 1, तो वहां पे हमको क्या चाहिए z प्लस 2, क्योंकि जो रीजन है वो इन टर्म्स ऑफ z प्लस 2 है, तो z प्लस 2 करेंगे, प्लस 2 किया तो ऑब्वियसली माइनस 2 करना पड़ेगा, तो z प्लस 2 माइनस 1 एज इट इज माइनस 2, राइट। सेकेंड टर्म में भी देखो z माइनस 3 इज देयर, required is z plus 2, so add 2 subtract 2, so z plus 2 minus 3 minus 2 and last term is z plus 2, वैसे ही रहे। जब हम इसको लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, पहला देखो 1 अपॉन z प्लस 2 माइनस 3, 1 upon z plus 2 minus 5 and 1 upon z plus 2. Now we have to expand the given function in the region mod of z plus 2 lies between 3 and 5, और z plus 2 को हम कुछ तो भी u कंसिडर कर लें, कुछ तो भी अलग, हर बार z plus 2 ना लिखना पड़े, so it is equal to u, expand करेंगे and at the end again substitute u in terms of z, right? So किस region में हमको expand करना है अभी, when mod of u lies between 3 and 5, where u is equal to z plus, right? Next slide please. So f of z क्या हो जाएगा हमारा, अभी देखो 1 upon u minus 3, 1 upon u minus 5 plus 1 upon u. Any doubt? अब रीजन कौन सा है, when mod of u, कौन सा रीजन है, when mod of u lies between 3 and 5, means mod u is greater than 3, तो पहले टर्म में जहां पे डिनोमिनेटर है u माइनस 3, u और 3 को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो u इज ग्रेटर क्वांटिटी, तो कॉमन क्या निकालेंगे u। नेक्स्ट टर्म इज u माइनस 5 एंड mod ऑफ u इज लेस देन 5, तो 5 क्वांटिटी ज्यादा है, इसीलिए माइनस 5 इज कॉमन, लास्ट टर्म प्लस 1 अपॉन u एज इट इज। So 1 upon u, 1 minus 3 by u inverse plus 1 upon 5, 1 minus u by 5 inverse plus 1 upon u. So 1 upon u and 1 minus 3 by u inverse expand करेंगे plus 1 upon 5, 1 minus u by 5 inverse, इसको हमने expand किया plus 1 upon u and then substitute the value of u in terms of z, that is z plus 2. So 1 upon z plus 2, 1 plus 3 upon z plus 2 plus 3 upon z plus 2 whole square and up to so on plus 1 upon 5, 1 plus z plus 2 by 5, z plus 2 whole square by 5 and up to so on plus 1 upon z plus 2. So this is expansion of the function in the region when mod of z plus 2 lies between 3 and 5. Clear? Next slide please. एक और problem देखो. Find Lorentz series expansion of f of z is equal to z square minus 1, z plus 3, z plus 2 in the region when mod z is greater than 2 and mod z lies between 2 and 3. अब फंक्शन देखो क्या है, फंक्शन क्या है, z square minus 1 upon z plus 3 z plus 2, right? पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करना है हमको सबसे पहले, तो पार्शियल फ्रैक्शन में रिड्यूस करने के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, यहाँ पे डिनोमिनेटर की डिग्री है 2, न्यूमरेटर की भी डिग्री है 2, तो हम इस फ्रैक्शन को डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन में नहीं रिड्यूस कर सकते, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे डिवीजन रहता है बिल्कुल वैसे ही डिवाइड करेंगे, जैसे 13 डिवाइडेड बाय 2 किस मेथड से करते हैं आता है ना आप लोगों को, 13 डिवाइडेड बाय 2 बिल्कुल वैसे ही करना है, तो यहाँ पे डिविडेंड इज z स्क्वायर माइनस 1, डिवाइजर इज z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिग्री ऑफ z दोनों तरफ देखो, डिविडेंड डिवाइजर दोनों की डिग्री कितनी है, सेम है 2, इसलिए हम 1 से डिवाइड करेंगे, so 1 is the quotient, देखो ऊपर लिखा हुआ है, right? z square minus 1 is dividend, z square plus 5z plus 6 is divisor, 1 is the quotient, इसलिए नीचे लिखा है हमने माइनस ऑफ z square plus 5z plus 6, डिवीजन करते हैं माइनस करते हैं ना, तो डिवीजन किया, रिमाइंडर कितना बचा, माइनस ऑफ z माइनस 7, so f of z z square minus 1 upon z square plus 5z plus 6, बिकॉज ऑफ इन दोनों की डिग्री सेम थी, इसलिए हमने इसको कैसा लिखा, 1 plus
1 plus minus of 5z minus 7 upon z square plus 5z plus 6. अब आप ध्यान दो 1 प्लस के बाद जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है ये क्लियर आप लोगों को? ऐसा कैसे ऐसे ही लिखते हैं ना हम, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड, ऐसे ही रहता है ना. So minus 5z minus 7 degree is 1, z square plus 5z plus 6 degree is 2. ये पार्शियल फ्रैक्शन का पहला रूल सेटिस्फाई कर रहा है, तो इस फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें. ठीक है, इस फ्रैक्शन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो कितना आया 3 अपॉन z प्लस 2 माइनस 8 अपॉन z प्लस 3. 3 अपॉन z प्लस 2 माइनस 8 अपॉन z प्लस 3. तो गिवन फंक्शन f ऑफ z जो z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z प्लस 3 z प्लस 2 था वो किस फॉर्म में हो गया? f ऑफ z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 अपॉन z प्लस 2 माइनस 8 अपॉन. सर इज देयर एनी प्रॉब्लम? minus 8 upon z plus 3. So first region mod z is less than 2. When mod z is less than 2, it is automatically less than 3. इसीलिए f of z is equal to 1 plus 3 upon z plus 2. में से बड़ी क्वांटिटी कौन सी है? 2. तो हमने 2 को कॉमन निकाला. नेक्स्ट क्वांटिटी कैसी है? 8 upon z plus 3. 3 को हमने बाहर निकाला. As usual, it is 1 plus 3 by 2, 1 plus z by 2 inverse, minus 8 upon 3, 1 plus z by 3 inverse. Next slide, please. So, z square, अब इस तरह से ये एक्सपांशन हो गया. Z square minus 1 upon z plus 2, z minus 3 is equal to 1 plus 3 by 2, 1 minus z by 2 square minus z by 2 whole cube and up to so on. और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा minus 8 upon 3, 1 minus z by 3 whole square and up to so on. Now second region is mod z lies between 2 and 3. Mod z lies between 2 and 3. So z और 2 में से बड़ी क्वांटिटी कौन सी है? z. इसलिए हम पहले इससे z कॉमन निकालेंगे. z और 3 को जब हम कंपेयर करेंगे तो 3 इज ग्रेटर देन z, इसलिए हमने सेकेंड में से 3 कॉमन निकाला. तो ये हो गया 1 plus 3 by z, 1 plus 2 by z इनवर्स माइनस 8 upon 3, 1 plus z by 3 inverse. And this is the expansion of same function in different region. Clear? So this is Laurent series. Thank you. आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं तो आप क्लियर कर सकते हो. मेरा नंबर आप अपने मैडम से ले सकते हो. आपकी जो मैडम है, आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो. मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी. ठीक है, अभी कुछ डाउट है तो पूछो. हेलो हेलो हेलो. यस मैम. हेलो. यस मैम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है. ओके. So finally, on the behalf of Suryodaya College of Engineering and Technology, I extend a really hearty vote of thanks to our guest, Dr. Rupali Kelkar ma'am, who spared time from his busiest schedule to grace this occasion. So I really thanks this delivering such a wonderful great lecture to our students. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you.